हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद महेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक गायरोस्कोप। इट इज रिलेटेड टू गेट आल्सो एंड रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आल्सो। सो डायनामिक्स ऑफ मशीनरी comprises this gyroscope topic, and inside that gyroscope today we will going to look out the four cases one by one. So first case is about the propeller rotates in anti-clockwise direction and aeroplane wants to take a right turn. Second case, propeller rotates in anti-clockwise direction and aeroplane takes a left turn. आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा फोर केसेस ऑल अबाउट दिस. थर्ड केस, when propeller rotates in clockwise direction and aeroplane wants to take right turn. Okay. Fourth one case, propeller rotates in clockwise direction and aeroplane wants to take a left turn. So this is all about the four cases, and here it is your first case. And this first case indicating propeller, or we can say rotor, is rotating anti-clockwise direction and aeroplane wants to take turn, which is first turn is right turn. Okay, so this one is our first case. Now for a gate point of view, this question is asked for 2 marks. You have to calculate the magnitude of reactive gyroscopic couple vector, as well as you have to mention in which direction the effect of reactive gyroscopic couple according to the direction. Okay, so that effect of reactive gyroscopic couple causes your, this one is front end side, this one is back end side, this is your tail side, this is nose side. So what will be the effect of this reactive gyroscopic couple on the aeroplane when it is going to take a left or right turn according to the rotor rotation? Maybe your clockwise rotor rotation is there or anti-clockwise. So according to, you have to put the answer in case of direction as well as magnitude. So how to calculate that magnitude? C, already we know that formula. C is equal to I into omega p, where I is mass moment of inertia of that aeroplane, omega is angular speed, that is nothing but this is angular speed of the rotor, and omega p is the precisional speed. Okay, so accordingly we can easily find out the magnitude, but when we want to find out the direction, we know the some cases. Okay, so first case, this one, your rotor or propeller is rotating, look at this, anti-clockwise direction, and एरोप्लेन वांट्स टू टेक राइट टर्न. सो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि रोटर का रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के केस में, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो हमें जो भी स्पिन वेक्टर मिलेगा, तो स्पिन वेक्टर आपको आउटवर्ड ही मिलेगा. ओके, अगर रोटर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन वेक्टर आउटवर्ड मिलेगा, अगर रोटर का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो स्पिन वेक्टर इनवर्ड मिलेगा. सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ केस. वहां पे हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज रहता है तो स्पिन वेक्टर आपका इनवर्ड आएगा. अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन वेक्टर हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे स्पिन वेक्टर हमने आउटवर्ड निकाला है. नाउ नेक्स्ट टास्क इज कौन सा टर्न देना है, आइदर राइट और लेफ्ट. यहाँ पे हमने दिखा है कि राइट टर्न देना है, तो जहां पे आपका स्पिन वेक्टर खत्म होता है वहां से आपको राइट टर्न देना है. ओके, यहाँ से मैंने राइट टर्न ले लिया और वो जेड एक्सिस पे खत्म होगा. यस, वाई एक्सिस तो आपका प्रिसीजन एक्सिस है, प्रिसीजन वेक्टर है. ओके, ओमेगा पी के साथ वहां पे रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ रोटर, वहां से हमने स्पिन वेक्टर आउटवर्ड निकाला. फिर बाद में हमें लेना है राइट टर्न, तो राइट टर्न यहाँ से हमने ले लिया और जेड एक्सिस पे हमने राइट टर्न खत्म कर लिया. तो जहां पे आपका राइट टर्न खत्म हो रहा है उस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर. ओके, तो ये आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल हो गया और डॉटेड लाइन से यहाँ पे मैंने शो किया है. एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिव इज नथिंग बट योर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर. तो रिएक्टिव हमें बराबर अपोजिट मिला है, एक्टिव के अपोजिट हमें रिएक्टिव मिला है. तो ये फिगर आउट ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज याद में रखना है यहाँ पे कि जो भी मैंने यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का एरो मार्क दिखाया है, जो पीछे से की तरफ से आगे की तरफ आ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. जब भी आपको एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर ऊपर की तरफ मिलेगा, जैसे मेरे को ये जेड एक्सिस के ऊपर की तरफ मेरे को एक्टिव मिल रहा है,
तो मैं हमेशा एरो मार्क पीछे से आगे की तरफ ही ड्रॉ करूंगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है चारों केसेस में। जब भी आपको एक्टिव ऊपर की तरफ आया, एरो मार्क पीछे से आगे लेना है आपको। और अभी आपको इफेक्ट लिखना है, तो इफेक्ट्स क्या आएंगे यहाँ पे देखो, इफेक्ट्स, दैट इफेक्ट्स ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल विल टेंस और कॉज दैट योर टेल एंड, यहाँ से अगर फोर्स यहाँ पे आगे की तरफ लग रहा है तो आपका नोज क्या हो जाएगा और आपका टेल, इनमें क्या चेंजेस होंगे वो हमें लिखना है। तो मेरा पीछे की तरफ से आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये साइड मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नोज इज गोइंग टू डीप एंड टेल इज गोइंग टू रेज। सो दिस इज माय इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। So the options are framed accordingly and you have to comment on that. Okay, so this is the first case all about. अभी सेकंड केस हम देखेंगे, तब तक मैं फिगर को चेंजेस करता हूँ। Now we want to take the second case. When propeller is going to rotate or rotor is going to rotate in anti-clockwise direction and aeroplane wants to take left turn. Okay, पहले हमने राइट टर्न ले लिया था, अब हमें क्या लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है अभी भी। ओके, सेकंड केस एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो हमारे चेंजेस क्या होंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा चेंजेस हो सकता है और यहाँ पे भी हमारा चेंजेस हो सकता है। और यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, राइट टर्न नहीं, हमें क्या कौन सा टर्न लेना है, यहाँ पे हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ओके, लेफ्ट टर्न, लेकिन हमारा प्रोपेलर और रोटर एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो पहले केस में हमें ये मिला था, अभी हमें कौन सा मिलेगा वो देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि आपका रोटर का रोटेशन देखो, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही है रोटर का रोटेशन। तो सबसे पहले स्पिन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो स्पिन वेक्टर का हाल क्या आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका स्पिन वेक्टर आउटवर्ड की तरफ ही आएगा। ओके, ये आउटवर्ड तरफ ही आ रहा है, तो स्पिन वेक्टर मेरा आउटवर्ड आ गया, तो ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सा टर्न लेना है वो मैं देखूंगा। मुझे अब लेना है लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ये मेरा ये है तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो राइट टर्न हो जाएगा, और नीचे की तरफ आऊंगा तो मेरा लेफ्ट टर्न हो जाएगा। तो मेरा लेफ्ट टर्न यहाँ से शुरू हो रहा है और जेड एक्सिस के ऊपर मुझे मेरा लेफ्ट टर्न क्या करना है, खत्म करना है। तो ये मेरा बन गया लेफ्ट टर्न। अभी जहाँ पे आपका टर्न खत्म होता है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करना होगा कि ये हमारा रिएक्टिव जो पहले केस में मिला था वो अब क्या बन गया है, हमारा ये एक्टिव बन गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ, ये हमारा हो गया एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। और उसमें एक चेंज क्या है, जो भी हमारा ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर मिलता है वो हमें क्या मिलेगा, डॉटेड ही मिलेगा। ओके, ये हमें डॉटेड लाइन से मिलेगा। और उसके बाद हमें बराबर एक्टिव के अपोजिट क्या मिलेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिव इज योर, दिस इज रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर एंड दिस रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर इज अ कंटीन्यूअस लाइन और स्ट्रेट लाइन। ओके, नॉट अ डॉटेड लाइन। तो ये हमें मिला रिएक्टिव। तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, एक्टिव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिव, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो उसके बाद मैंने बोला था कि आपको ध्यान देना है कि एक्टिव ऊपर आता है या नीचे आता है। तो यहाँ पे देखो एक्टिव मेरा नीचे आ रहा है, तो जो भी फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, आगे की तरफ से पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का एरो मार्क पिछले केस में हमने देखा था कि इसके बराबर अपोजिट था, तो हमें अब कौन सा मिल रहा है, आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ लगेगा। तो चेंजेस क्या होंगे, अगर मेरा फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, आप देखो मेरा फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो मेरा टेल एंड क्या हो जाएगा, डीप में चला जाएगा, और नोज एंड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ओके, तो ये मेरा टेल एंड है, तो टेल एंड नीचे गया मतलब नोज एंड ऊपर आया। यहाँ पे देखो टेल एंड नीचे गया तो नोज एंड ऊपर आया। तो यहाँ पे लिखो कि
nose is going to raise and tail is going to dip. So what is that? Effect of reactive gyroscopic couple is going to cause raise your nose and dip the tail of the aeroplane. Now we want to take the third case. And what is third case? When your rotor is going to rotate क्लॉकवाइज. अभी एंटी क्लॉकवाइज का दोनों केसेस खत्म हो चुका है. अब हम क्या करेंगे? रोटर का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे. रोटर इज गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज. नाउ दिस वन इज द थर्ड केस. थर्ड केस में हमें क्या देखना है? आपका प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज हो रहा है और हमें कौन सा टर्न लेना है? हमें लेना है राइट टर्न. सो राइट टर्न हमें लेना है. तो राइट टर्न के लिए मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोपेलर का पहले मैंने रोटेशन चेंज किया. ओमेगा इज रोटेटिंग, सॉरी प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ओमेगा. ओके, एंड वी वांट टू टेक अ राइट टर्न. तो राइट टर्न ऊपर की तरफ हो जाएगा. तो हमें बाद में क्या देखना है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे. ये तो सेकंड केस के रिजल्ट्स है. तो यहाँ पे मैं रिजल्ट्स को चेंज कर दूंगा कि रिजल्ट्स क्या आएंगे वो हम देखेंगे. यहाँ पे अब देखो एरो मार्क भी मैंने चेंज करके रखा है. आगे की तरफ आएगा या पीछे की तरफ आएगा मुझे पता नहीं है, अभी हम देखेंगे. सबसे पहले क्या चीज याद रखना है कि प्रोपेलर का रोटेशन देखना है. क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है. इसका मतलब क्या है कि हमारा स्पिन वेक्टर कहाँ पे आएगा? स्पिन वेक्टर हमारा अंदर की तरफ आएगा. सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कि स्पिन वेक्टर मेरा अंदर की तरफ आएगा. ओके, तो मैं स्पिन वेक्टर को चेंज कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो स्पिन वेक्टर मेरा, अभी रेड पेन से यूज करता हूँ मैं स्पिन वेक्टर के लिए. क्यों स्पिन वेक्टर मेरा अंदर की तरफ आ रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो कि मेरा जो ही प्रोपेलर है, ये जो प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो पहले दो केस में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसी वजह से वो बाहर की तरफ था, अभी अंदर की तरफ है. तो ये स्पिन वेक्टर है, स्पिन वेक्टर अंदर की तरफ. ओके, अभी हमें कौन सा टर्न लेना है? हमें लेना है राइट टर्न. तो कैसे राइट टर्न लोगे? तो हमें एरो मार्क देखना है. यहाँ पे मेरा एरो मार्क कैसा है? इस तरफ है. तो मुझे राइट टर्न देना है. अगर मैं ऊपर की इस तरफ जाऊंगा तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा. अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरा कौन सा टर्न हो जाएगा? वो राइट टर्न हो जाएगा. यहाँ पे देखो मुझे राइट की तरफ आना है तो मैं यहाँ पे इस तरफ आऊंगा. तो जहां से स्पिन वेक्टर शुरू होता है वहां से हम टर्न देना शुरू करेंगे. ओके, चलो रेड पेन यूज करता हूँ. तो ये मेरा राइट टर्न हो गया है. राइट टर्न जिस जगह पे खत्म होता है जेड एक्सिस पे, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर. तो यही हमें पिछले बार भी मिला था सेकंड केस में, तो अभी भी यहाँ पे वही मिल रहा है. तो मुझे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर कहाँ पे मिला? जहाँ जेड एक्सिस के ऊपर. तो इस एक्सिस को मैं बोलूंगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर, एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिव दैट इज नथिंग बट योर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर दैट इज जेड डैश. ओके, नाउ अभी हमें क्या लिखना है? रिजल्ट लिखना है. तो रिजल्ट में कैसे लिखेंगे? जहां पे हमें मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको एक याद ध्यान में रखना है कि एक्टिव ऊपर आता है या नीचे आता है, देखना है. अभी मुझे मिला है एक्टिव नीचे की तरफ. तो मेरा फोर्स कैसे लगेगा? मेरा फोर्स आगे से पीछे की तरफ लगेगा. तो सेम केस आ रहा है जो हमारा सेकेंड केस में आया था, आगे की तरफ से पीछे की तरफ. तो फोर्स मुझे कहाँ पे लगाना है? यहाँ से मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ. यहाँ से मैं टेल एंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ. तो मेरा क्या हो जाएगा? टेल एंड मेरा नीचे आ जाएगा और नोज एंड मेरा ऊपर आ जाएगा. यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से कपल यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरा ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो टेल इज गोइंग टू डीप एंड नोज इज गोइंग टू रेज. कितना इजी है. अगर हमने एक ही चीज ध्यान में रखी कि एक्टिव और रिएक्टिव कहाँ पे आता है, तो आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हो 2 मार्क्स के लिए. ओके, इफ यू कंसीडर फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दिस इज फॉर 10 मार्क्स. You have to just write down C is equal to R into omega P for 5 marks and finding out the results for 5 marks. Okay, if get concern, this question is asked for 2 marks. Okay, so this is the effect. So effect of reactive gyroscopic couple will tends to raise the nose and dip the tail. Now last case is nothing but propeller or rotor is rotating clockwise direction and we want to take a left turn. So last case, propeller is rotating in clockwise direction
and aeroplane wants to take left turn. Okay, so for that just take out the spin vector as it is a clockwise. मैंने बोला था कि क्लॉकवाइज है तो हमें स्पिन वेक्टर अंदर की तरफ मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका स्पिन वेक्टर है। उसके बाद हमें क्या देखना है, स्पिन वेक्टर अंदर की तरफ आया और हमें कौन सा टर्न लेना था, लेफ्ट टर्न। अभी लेफ्ट टर्न किस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट टर्न। और खत्म किस एक्सिस पे होना है, खत्म हमारा जेड एक्सिस पे होना है, नॉट वाई एक्सिस। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है हमें। तो यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ और लेफ्ट टर्न मुझे यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ पे खत्म होगा लेफ्ट टर्न, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करना होगा। ये हमें मिल रहा है रिएक्टिव को, एलिमेंट को रिएक्टिव मिलेगा, और ये हमें अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिव इज रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। यस, दैट इज द चेंज। जहाँ पे खत्म हो रहा है वो आपका बनेगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। और एक्टिव कैसे होता है, डॉटेड लाइन से डिनोट होता है। तो यहाँ पे मैं ये डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये पूरा डॉटेड लाइन में आएगा। और आपका जो भी अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्टिव, दैट इज नथिंग बट रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। और वो कैसे आएगा, कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, डॉटेड नहीं है ये, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये अब हमारा z डैश बनेगा और ये हमारा z बनेगा। तो सबसे पहला केस हमने पढ़ा था कि एक्टिव अगर हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है तो हमारा फोर्स एरो डायरेक्शन कैसे आएगा, रिएक्टिव से गायरोस्कोपिक कपल वेक्टर कैसे आएगा, पीछे की तरफ से आगे की तरफ हमें फोर्स एरो मार्क मिलेगा। देखो सबसे पहला केस भी यही पढ़ा था और फोर्थ केस भी यही आ रहा है। सेकेंड और थर्ड केस में सेम रिजल्ट था और फर्स्ट और फोर्थ केस में सेम रिजल्ट है। तो फोर्स यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब नोज आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नोज इज गोइंग टू डीप एंड टेल इज गोइंग टू रेज। तो इतना आसान है लिखना। अगर आपने एक केस अच्छे से पढ़ा तो चारों केसेस आपको इजी वे में समझ में आएंगे। तो अभी हम क्या लेंगे, गेट का एक क्वेश्चन लेंगे जो 2019 में पूछा था, और उस गेट क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी। सो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, तो हम जो भी गेट का प्रॉब्लम लेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में लेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो आप देख सकते हो चारों केसेस मैंने बताया अच्छी तरह से। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you are not subscribed, please do subscribe. Thank you very much.